Okay, write down. Nuclear force. Nuclear force. Nuclear force is a strong attractive force. Nuclear force. Nuclear force. Nuclear force is a strong attractive force that that binds the proton and neutron that binds the proton and neutrons together inside the nucleus, that binds the proton and neutrons together inside the nucleus. We have studied about mass defect and mass energy equivalence, and also about radioactivity, decay law, and properties of alpha, beta, gamma rays. Okay. Uh, Write down heading nuclear reaction. Nuclear reaction. There are two type of nuclear reaction. Write down nuclear reaction heading. A reaction which involves a reaction which involves the change of stable nucleus. The change of stable nucleus. The change of stable nucleus of one element of one element of one element into the nucleus of into the nucleus of into the nucleus of another element. Okay, there are two type of reaction. First one, write down nuclear fission. You have studied in class 10. Nuclear fission. What is nuclear fission? First write the definition, then we will write some examples. Nuclear fission. The phenomenon in which a heavy nucleus, the phenomenon in which the phenomenon in which a heavy nucleus a heavy nucleus, write down within bracket a atomic mass, the mass number is greater than 230, a greater than 230, close bracket close. When excited when excited when excited splits into two smaller nuclei, splits into
two smaller nuclei splits into two smaller nuclei of nearly comparable mass, of nearly comparable mass, of nearly comparable mass is called nuclear fission. Is called nuclear fission. Okay, that is the definition. Change the line and write down the nuclear reaction involved can be written as. कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग उसको भी देख लेते हैं. ये न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर फिजन कह सकते हैं हम. यूरेनियम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं. यूरेनियम 92 टू 235. यूरेनियम 92 235 ये कोई एलिमेंट है. इट गेट एक्साइटेड. What is N01? Anyone? What is N01? न्यूट्रॉन सर. न्यूट्रॉन होगा ना. What is N01? N01 is a neutron. हाँ, देखा नहीं है कि न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करते हैं. हाँ, न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करते हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे, तो उसमें चेन रिएक्शन आ जाती है. न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन होगा. कैसे देखना, ये इसका मास 1U के बराबर होता है, उसका चार्ज 0 होता है, इसलिए N01 लिखा गया. N01 जब इसमें हम बम्बार्ड कराते हैं किस पे, यूरेनियम 92 235 पे बम्बार्ड कराते हैं. एडिशन मतलब बम्बार्ड कराते हैं. बम्बार्ड कराने से ये जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद ये ब्रेक हो जाता है बेरियम और क्रिप्टन में. बेरियम और क्रिप्टन में ये ब्रेक हो जाता है. इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, बेरियम Ba56 and 141 plus krypton Kr, krypton 36 and 92, फिर plus 3N01 up plus Q. What is the meaning of Q? You can add them. 6 6 12 it is 2, 5 3 8 and 1 9, it is 9. एंड यहाँ पे देखोगे इसका जो एटॉमिक मास है 0, इसको ऐड करेंगे, तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो ये 92 के बराबर आ जाएगा, है ना. और यहाँ पे ऊपर वाले ऐड करेंगे सब, तो देखो 141 92 ऐड करते हैं. 141 92 141 92 ऐड करेंगे, 233 आ रहा है. 233 इन दोनों का 233, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी 3 न्यूट्रॉन, 3 1 1 3, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 235. इट इज 235 एंड प्लस 1, 235 प्लस 1 236. हेयर इट इज 236. ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे न्यूट्रॉन है इसके साथ ऐड होता है तो इसका मास नंबर बढ़ जाता है ना. बढ़ने के बाद क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टन में. इसके बाद ये इसके साथ ये 3 न्यूट्रॉन निकलते, 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलते हैं, और फिर 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियाई है, जो ये जैसे ये तो डिके हो गई, इट इज डिकेड इनटू 2 पार्ट्स. उसके बाद जो बची हुई अनडिकेड यूरेनियम न्यूक्लियाई होगी, उस पे ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अटैक करेंगे,
जो अनडिकेड न्यूक्लियाई होगी यूरेनियम। ओके, तो अटैक करेंगे तो फिर से वो क्या होगा, फिर से वो ब्रेक होगा लाइक दिस रिएक्शन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे तो एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं, फिर सेकेंड टाइम पे क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन्स विल बम्बार्ड ऑन द यूरेनियम एंड 3 विल generate 3 neutron will generate again one neutron will generate again 3 neutron, means 3 neutron will generate 9 neutrons, and the 9 neutron will generate 27, and 27 will generate 81. Okay, so this is called chain reaction. In nuclear fission there is a chain reaction. एक से तीन, तीन से उससे तीन से तीन तीन निकलेंगे 9 हो जाएंगे, फिर 9 से तीन तीन निकलेंगे तो 27 हो जाएंगे, उससे तीन तीन निकलेंगे 81 हो जाएंगे। इस तरह से ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एक से दो, एक से तीन जुड़ा हुआ है, फिर एक से तीन जुड़ा हुआ है, एक से तीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कि ये चेन रिएक्शन है, एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो Q। ये पूरा लिख लिया आपने, बैलेंसिंग देख लिया आपने किस तरह से बैलेंस किया हुआ है न्यूट्रॉन को, और दो लाइटर न्यूक्लियाई इज बैलेंस्ड बाय दैट। ओके, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल, अगर इसमें कोई हम रॉड नहीं लगाते, कोई कंट्रोल करने के लिए कुछ ना लगाए अगर हम, तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। और कंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन अभी आगे बताएंगे, रिएक्टर्स में बताएंगे कि कैसे इसको हम कंट्रोल करें। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इतना फास्ट, उन न्यूट्रॉन्स को हम किसी तरह से अब्जॉर्ब कर लें, किसी मेथड से अगर उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाए तो मॉडरेटर कह सकते हैं उसको, मॉडरेटर या अब्जॉर्बर लगा दें, तो जिससे क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन का जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट ना हो। तो ऐसी रिएक्शन हमारी कंट्रोल्ड रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है ना। अगर हम इसको छोड़ दें तो वो चेन बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए क्या होता है वहां पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हम एटॉमिक बम में यूज करते हैं, और अगर हमको एटॉमिक रिएक्टर में यूज करना है तो हम कंट्रोल्ड रिएक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग हमने देख ली है। Q इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिख लो यहाँ पे व्हाट इज Q। Q को यहाँ पे लिख लो, Q क्या होता है, द वैल्यू ऑफ Q is about 200 mega electron volt. The value of Q is about 200 mega electron volt. Okay. कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड समझ में आ गया ना। तो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा लिख लो। अनकंट्रोल्ड क्या होता है वो जानते हो, और कंट्रोल क्या होता है वो भी जानते हो। चेन रिएक्शन क्या होता है, एक से तीन, तीन से बढ़ता जाता है, इसलिए उसको भी हम चेन रिएक्शन कह सकते हैं। इसमें लिख लो मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर सब 10th में पढ़ा हुआ है सब तुम लोगों का, बल्कि तुम लोग 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे। हाँ, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है। लिख लो इसमें मॉडरेटर क्या कहते हैं। मॉडरेटर एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन,
any substance which is used to slow down the fast moving neutrons. Any substances any substance which is used to slow down the fast moving neutrons. इसके लाइन चेंज करके लिखो commonly used water, commonly used water, heavy water, D2O वाटर कहें, या इसको हम हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिखो ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, ये सब है वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम भी यूज कर सकते हैं। राइट डाउन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस इन विच it is a device in which it is a device in which a nuclear chain reaction is initiated. A nuclear chain reaction is initiated nuclear chain reaction is initiated, maintained and controlled, maintained and controlled. देखो मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी में लिख लो मेन पार्ट, बस हेडिंग में लिखवा देता हूँ, बाकी आप लोग इसको अपने आप से पढ़ लेना क्या होता है। मेन पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, ऐसे पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूल, नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूल, सेकेंड मॉडरेटर, सेकेंड मॉडरेटर, थर्ड कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं? स्टॉप करती हैं या स्टार्ट करती हैं रिएक्शंस को, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। लिख लो कंट्रोल रॉड में लिख लो कैडमियम और बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन। फोर्थ पॉइंट कूलेंट, कूलेंट में क्या क्या यूज करते हैं? कूलेंट में लिख लो हैवी वाटर, लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर एंड लिक्विड सोडियम। नंबर 5, नंबर 5 पे देखना लिखा होगा इसमें शील्डिंग, कवर करना होता है, उसमें से जो हार्मफुल रेज हैं वो बाहर ना आए, इसके लिए उसको हम शील्ड करते हैं, शील्डिंग कहते हैं इसको। Write down next heading nuclear fusion, nuclear fusion,
द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, उल्टा प्रोसेस होता है इसमें, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, टू लाइट न्यूक्लियाई, the process in which two light nuclei, the process in which two light nuclei combine to form a single, combine to form a single heavier nucleus, to form a single heavier nucleus. इसमें लिख लेना फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन थी, नीचे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन। ये दो लाइट न्यूक्लियाई है, 1H1 एंड 1H1, दो हाइड्रोजन कंबाइन होके यहाँ पे 1H2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें एक पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, बताऊंगा इसको क्या होता है अभी डिटेल से, उस पीछे पीछे थोड़ा सा हमको अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब ये बन जाता है, जब ये बन जाता है तो फिर ये दो टाइम क्या करता है, H12 प्लस H21, ये बन जाता है हमारा He23, हीलियम बन जाता है, प्लस एक न्यूट्रॉन दे देता है, प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता है। या फिर ऐसा भी बना सकता है, 2H1 प्लस 2H1, 3H1 ट्राइटियम बना सकता है, 1 1, सो 3 एक 3 1 एंड 4, 4 1 1 1 1 2, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लो ये सबको, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। ओके, इसमें कंडीशन लिख लो, नेसेसरी कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, नेसेसरी कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन।
necessary conditions for nuclear fusion. Necessary conditions for nuclear fusion. Number 1, temperature. Very high temperature. Number 1 पे लिखो very high temperature. Very high temperature. 2 into 10 to the power 6 Kelvin. बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये. 2 into 10 to the power 6 Kelvin. ना इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते. बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ये पॉसिबल नहीं है ना. ये टेम्परेचर कैसे मिल सकता है? अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए. मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा, तब जाके हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए. अगर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? फिर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, है ना. वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2 into 10⁻⁶ केल्विन. सेकेंड है वेरी हाई डेंसिटी. डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए. उसके बाद अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको लिख के आज फिनिश कर देते हैं चैप्टर. ये अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके क्या होता है ना. तो फर्स्ट नंबर 3 पॉइंट है, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके. तो इन तीनों पॉइंट्स को भी हम लोग लिख लें, चैप्टर फिनिश करते हैं आज. अल्फा डिके क्या होता है? लिखो अल्फा डिके. बेसिकली अल्फा डिके क्या होता है, इसको लिख लो. वेट, first write down alpha decay. The process in which an unstable nucleus, the process in which an unstable nucleus transforms itself, unstable nucleus transforms itself into a new nucleus, into a new nucleus. Into a new nucleus by emitting an alpha particle. By emitting an alpha particle. By emitting an alpha particle. Alpha particle क्या होता है? A helium nucleus. ब्रैकेट में लिखना ना, helium nucleus. इसकी रिएक्शन जो है वो AZ मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर. अगर ऐसा होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे न्यू न्यूक्लियस में जिसका नाम है Y. और जो भी Z होगा, Z में
2 कम हो जाएगा और A में 4 कम हो जाएगा, A माइनस 4 Z माइनस 2। अब प्लस इसमें एक हीलियम निकल जाएगा 2 एंड 4, और प्लस कुछ एनर्जी निकल जाएगी। ये अल्फा डीके होता है, ये अल्फा डीके का केस है, कुछ और ज्यादा इसमें नहीं है। अल्फा इसको ऐड करोगे तो z प्लस 2 z माइनस 2 प्लस 2 z आ जाएगा, a माइनस 4 प्लस 4 a हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख लो, समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, बीटा डीके। बीटा डीके अल्फा डीके एंड बीटा डीके। अब देखो बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ the process of spontaneous decay, the process of spontaneous emission of an electron, the spontaneous emission of an electron or a positron, electron and और अ पॉजिट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा, लिखा हुआ है एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके, फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके, ठीक है ना। अब बीटा डीके दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए ये दो टाइप का होता है। नंबर ए पे लिखो बीटा माइनस डीके, ऐसे बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके क्या होता है, electron emitted from the nucleus is called beta minus decay. Electron emitted from the nucleus, that is why it is called, that's why it is called beta minus decay, that's why it is called beta minus decay। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते, P1532, it will become S16 sulfur 1632 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होता है, यहाँ पे लिख लो इसको। ये न्यू बार जो है एंटी न्यूट्रिनो और ये इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन। इन जनरल अगर देखा जाए, इन जनरल जिस तरह से ये इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन इस तरह से अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इन जनरल लिख लेना, इन जनरल
यहाँ पे कोई x है, ये z है, ये a है, तो इट विल बिकम y z+1, z+1 ये a रहेगा। इसके एटॉमिक नंबर में एक एडिशन एंटी न्यूट्रिनो ऐड होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बढ़ जाता है। देखना, एंटी न्यूट्रिनो ऐड होने से बढ़ जाता है। एटॉमिक मास में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। क्योंकि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है ना, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये इसके साथ इसमें एक एक एटॉमिक नंबर ऐड कर देता है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बीटा माइनस। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए इसको बोलेंगे बीटा माइनस डीके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग। इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे बीटा माइनस डीके। उसके बाद आता है इसी का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। इसको लिख लेना बीटा माइनस, ये वाला होता है बीटा माइनस। इसमें बी पार्ट होता है बीटा प्लस डीके। इसमें एक लिख लो एग्जांपल, Na सोडियम 1122, it will become neon 1022 प्लस एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा प्लस एक न्यूट्रिनो निकल जाएगा। ये न्यूट्रिनो हो, ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन, यानी उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। इन जनरल इस तरह से लिखा जाए तो एक्स जेड ए, इट विल बिकम YZ-1, ये ए ही रहेगा, ये माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता है ना। यहाँ पे E+10 प्लस न्यूट्रिनो, इसी को हम बीटा प्लस कहते हैं। थोड़ा थोड़ा याद करने वाला ये सब। एक और लास्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, थोड़ा सा है, 2-4 लाइन, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। डन। ओके, लिखो गामा डिके। Gamma decay. The process of emission of gamma rays. The process of emission of gamma rays during radioactive disintegration. During radioactive disintegration of a nucleus. Of a nucleus. इसमें रिएक्शन लिख लेना, ये A है, ये Z है, और ये जब बनता है AZ ही बनता है, बट इसमें से गामा रेज निकलती हैं। इनमें एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। नो चेंजमेंट इन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। बट इतना ध्यान रखना,
ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट, और ये हमारा होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एक हमारा एक्साइटेड स्टेट आता है। एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जी को बस रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एक्साइटेड हो जाता है बस, एक्साइटेड से वो ग्राउंड स्टेट में जाता है, एनर्जी को रिलीज करता है विदाउट चेंजिंग इन मास एंड एटॉमिक नंबर। Without changing in its mass and atomic number, the energy in the form of radiation is released. Okay, energy in the form of radiation, in the form of gamma rays, it is emitted from the nuclear disintegration. Okay, hope आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। कुछ कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो जो पढ़ा दिया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ऐसे एज इट इज रख लेना। इससे बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बस इतना याद रखना जितना पढ़ा दिया।